शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहे। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को
दुश्मन बना फिरता। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greater name of Almighty Allah, the most gracious and the most merciful, whose boundaries are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, whose love is our life, and whose worship is our faith. Assalamu alaikum and a very good day to all of you present here. I hope you are doing very well and great today. Ladies and gentlemen, this gathering belongs to you and your children, the children who gave their heart and soul for the last 2 weeks and have made this day possible. I, Ramisha Khan, on the behalf of management of the Northern Higher Secondary School, welcome you all this special day of excitement and splendor. We are glad to have you here with us on this auspicious day when our school is celebrating its first open day event, a day planned with so much support and enthusiasm for all stakeholders. You can expect an extravagant and a complete day of entertainment ahead, a day that will leave you wanting to come back for more. The performance by children shall definitely leave you mesmerized. Our administrators and our academic teams who are ever ready with their inputs for the betterment of this institution have supported a lot and their efforts have added revival. To start this day, I would like to call upon Anam Kaneem of grade 6 for the recitation of Holy Quran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है रोज़े रोशन की और रात की जब वो छा जाए, नहीं छोड़ा तुमको ए मोहम्मद तुम्हारे रब ने और ना वो नाराज़ हुआ। और यकीनन बाद का दौर बेहतर है तुम्हारे लिए पहले दौर से और अनकरीब वो कुछ अता करेगा तुम्हें तुम्हारा रब क्यों खुश हो जाओगे तुम। क्या नहीं पाया तुम्हारे रब ने तुमको यतीम फिर ठिकाना फराहम किया और पाया तुमको नावाकिफ राह तो राह दिखाई और पाया तुमको तंगदस्त तो गनी कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना और जो दिवाली हो उसे ना छिड़कना और जो नेमतें हैं आपके रब की उनको खूब बयान करते रहना। Subhanallah. For the English translation, I would like to call Rija Hussain of grade 6. Bismillahirrahmanirrahim. I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the morning brightness and by the night when it covers with darkness, your Lord has not taken leave of you, O Muhammad, nor has he detested you, and the hereafter is better for you than the first life, and your Lord is going to give you, and you will be satisfied. Did he not find you an orphan and give you refuge? Did he not find you an petition? And he found you lost and guided you, and he found you poor and made you self-sufficient. So as for the orphan, do not oppress him, and as for the petitioner, do not grapple him.
But as for the favor of your Lord, report. Subhanallah. Beautiful. What an amazing and peaceful recitation for the ears. Next, I would like to call Ifra Fatma from grade 7, who is going to present Qasida Burda Sharif, along with her cute participant namely Zainab Zishan, Ishal Fatma, Afifa Areen, Hamna Abdullah, Rija Hussain, and Ashra Hussain from grade 1, 2, 3, and 6. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाना सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम न कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है वही सरदार आलम है वही गमखोर उम्मत है वही तो हशर के मैदान में सबकी शिफात है शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम Subhanallah. Now please, I would request all of you to stand in honor of the national anthem. Request Miss Virgiz Fatma to come and say a few words. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. All right. A very good morning. In fact, now so it's almost afternoon. A very good afternoon to all of you. I hope you all enjoy the day today here with us. Just to begin with the thought and just to begin with the day. As soon as we say the word school, as soon as we say the word school, as soon as we say the word teacher, what comes to our mind is a teacher, a student, a book and a pen. Isn't it so? But believe me, this is not education. I hope you all have understood up till now whatever I said. I'll just begin with it once again. That when we speak about education, the general perspective of education is
that the child goes to the school with a bag full of books, pen, a teacher standing there teaching, and the child comes back. Believe me, this is not education. Education is not only a book and a pen. Education is knowing. Education is understanding. Education is the feeling to be there when someone needs you. Basically, this is education, which most of us have forgotten. So if we speak about education and we speak about a book being the best publisher's book, that's not enough. If you do not inculcate the habit of honesty, respect, faithfulness, loyalty, you are not giving any education to your child. Here, when we began with this institute, the Northern Higher Secondary School, the main aim for this institute is not only a paper and a pencil, not only a book and a pen. It's the system which needs to be changed. It's the mind of the child who will soon be becoming a youth. We need to involve that child with everyday activities to be a part of the society. Until a child does not do something, he will not know. Now there's a difference between knowing and learning. You give me a paragraph, I'll recite it for a couple of times and I'll learn it. But that will be learning, that will not be knowing. Knowing is when you go through it. Here at Northern Higher Secondary School, you will see this. This education is not a formal education. Here children are learning with books, but not only with books. They are going through those real life exercises beginning from pre-primary till college level, which you are going to have a look at it today. The scratch program, maths being at their fingertips, science learning by doing, technology getting to know about it through going through it. There's a saying that if a person is hungry and you give him fish, you are only feeding his stomach with the food. But if you teach him how to fish, he will never be hungry again. So this is what we are doing here. This Northern Higher Secondary School, we are teaching the child to know how to fish. All the curiosity which is there in his mind, he is going through it to learn to know it. Many parents will think, what is this? ये तो ऐसा लग रहा है बच्चा स्कूल गया खेल खेल कर आ गया. It's like not खेल. He's learning through it. We may not understand it now, but we will understand it once the child gets to know things the way he should know to get himself educated. I hope and in fact I'll pray that Almighty Allah helps us in being with those people who understand this thought. I pray that Allah helps us with people like these people who are here early morning on Sunday, who are here for their children. This is what is required. Parents at times think कि book दिला दी, copy दिला दी, बेहतरीन स्कूल में डाल दिया, enough. That is one part of it. You have to be with the child. We have to be with the child for making him understand what is education. Education is not book and a pen. Education is learning, knowing and feeling. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे को रो बयां. The angels were enough for Allah's worship. Why were we created? Why have we given the standard of the most noble creature? It's this warm feeling which has to be there. It's not only that I pray 5 times. I am a staunch Muslim. I do whatever Allah has asked me to do. But in my heart, I am not honest. So is that prayer, is that fast enough?
वो तो फरिश्ते भी कर रहे थे. So this feeling needs to be inculcated in these small children who soon will be the youth of this nation. We very, very simply and very, very easily say society में ये नहीं होता, ज़माने में ये नहीं होता, this, that. But who is society and who is ज़माना? Aren't we a part of it? What is our responsibility? This school has taken this as the responsibility. We, along with you all, want to improve the system in a way that the child gets educated by knowing, feeling and understanding. Not only by giving a writing, learning and then producing it on an exam paper. That is not education. If a child comes, if a parent says, "Mera bachcha first aata hai," fine. That is one part of education. The other and the more important part is how humble he is, how honest he is, how respectful he is. Here you will see that these are like, all right, we learned through a paper and a pen, but today none of us need anything except our mobile phones. Mobile phones to communicate with each other, mobile phones to get updated, news, everything is on that mobile phone. Isn't it so? Just imagine these children are growing up with mobile phones in their hands. So where are they going to lead? Are we preparing them for that? When we were small, at least when I was small, we did not have those mobile phones. And now we cannot even think a day without a mobile phone. So just imagine the child who is growing up with that mobile phone in his hand, after a couple of years, what else will he be expecting? Are we giving him that? Are we giving him the right path? And that doubles the responsibility. Giving the mobile phone in the child's hand is one part of it for him to learn, but being there with him to give that directed learning is another important part. Robotics is a part of it. It's like machines. Mental maths is a part of it. Like knowing your maths at your fingertips. You are going to observe this today. Once you all are visiting, you all are going to observe this here. Your children are performing this. They've learned this. Though we are just like, a few months old. Believe me, we are only a few months old and our children will give you the mental maths on their fingertips. They are going to work with robotics and let you know how do robotic science work. So inshallah you will be spending a good day, and I hope and I pray that Allah keeps us surrounding with good people who are honest and help us out in doing something good for our nation with the help of our youth. Thank you. Thank you, Miss, for your kind and amazing and motivating words. Now, I would like to call the students of Pre-Montessori, Junior Montessori and Senior Montessori to perform a cultural song. Thank you.
was a really cute performance, I must say. Now I would like to thank Ms. Rafia Malla for honoring this event with your presence. We really appreciate you taking time out for us from your busy schedule. It's an immense pleasure to have you present here with us on this most important day for the Northern Higher Secondary School. So everyone please put your hands together for Ms. Rafia Malla, who I would like to call on stage to say a few words for us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ फरीद साहब, मैडम बरजीस, अनोशे और तमाम जो मोअज़्ज़िज़ वालिदैन हैं, मेरी भाई, मेरी बहनें,
और मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक रवायती जुमला जो हम सब कहते हैं कि बेहद मशहूर हूँ नॉर्दर्न हायर सेकेंडरी स्कूल की, जिन्होंने मुझे इस महफिल में मदऊ किया। लेकिन मैं वाकई बहुत मशहूर हूँ फरीद साहब की कि मुझे आज इस इवेंट को विटनेस करने के लिए बुलाया। उसका एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो हमारा मशरकी मुआशरा है, हमारे यहाँ जो ये पाकिस्तान की सोसाइटी है, इधर हम में से वो एथिक्स और वो नॉर्म्स निकल गए हैं जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम एजुकेशनिस्ट को एज अ चीफ गेस्ट करके बुलाएं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि अब हमारे इंस्टीट्यूट्स में ये अक्ल आ गई है, ये समझ है कि हमें अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो एजुकेशनिस्ट को ही आगे करके पेश करना है वालिदैन के सामने, बच्चों के सामने, जो उनको कुछ अच्छी सी बातें जो है वो समझा सके। हमने देखा था कि हमारे जो रवायात थे उसमें जब पुरानी हम फिल्में देखते थे तो वो एक स्टेटस सिंबल होती थी कि जो लड़का है वो कवि है, शायर है, लेखक है, तो उसको रिश्ता दें, वो हसास है, अच्छा फ़र्द है, माशरे में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब आप देखें कि जब आप रिश्ते के लिए भी जाते हैं तो अगर सुनते हैं कि ये टीचर है, ठीक है, या किसी मदरसे में करते हैं तो उसको रिश्ते नहीं मिलते। तो ये जो सारी हमें चीज़ें अब चेंज करनी है, वो सारी जिम्मेवारी हम एजुकेशनिस्ट की है। और मैं आज मुझे बहुत अच्छे तादाद में अपनी बहनें मिली हैं, तो मैं उनको ये दो मायने कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं उनकी परवरिश हम माँओं की जिम्मेदारी है, हम बहनों की जिम्मेदारी है। मैं आज आई सिर्फ इस वजह से हूँ कि रिसेंटली हमारे यहाँ औरत मार्च हुआ। मैं खुद शायरी करती हूँ, मैं खुद कॉलमिस्ट हूँ, मेरे खुद किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन उस औरत मार्च में जो हदें क्रॉस की जाती हैं वो खुद औरत के तकद्दुस को पामाल करती है। इस वक्त हम सब औरतों की ये जिम्मेदारी है कि जो मर्द होता है वो सारा दिन घर से बाहर होता है, बाप की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कमाने में मसरूफ़ होता है, मुआशी प्रेशर्स लेता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है वो आप बहनों की है, आप बीवियों की है, आप माँओं की है कि आप अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनकी अच्छी परवरिश करें। और जितनी भी पढ़ी लिखी बहनें यहाँ हाल में हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चा जब आप स्कूल में दाखिल करती है तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि हर किस्म की मालूमात उसको प्रोवाइड करें। उसके बावजूद आपने देखा है कि अब तमाम जो स्कूल हैं बच्चों को एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ उसकी क्लास लेते हैं, उनको माशरे में किस तरीके से चलना है वो चलना भी सिखाता है। लेकिन जितनी भी हमारी अपनी बहनें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हर चीज़ अपने शोहर पे न छोड़ दे, क्योंकि वो घर के बाहर जितने मसाइल है उनको भी मुँह देता है, तो घर के बच्चों के लिए कमाता है, आपको खुशियाँ बांटता है। अब आप घर में हिम्मत से किरदार अदा करें कि अपने बच्चों को अच्छी माँ की तरह परवरिश करें, अपने बच्चों को ऐसा मजबूत बनाएं कि आपका मुल्क और कौम वो नाम रोशन करे और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराए और एक पॉजिटिविटी के साथ लहराए। क्योंकि हम कहते हैं कि जहाँ जागो वहाँ सवेरा। अभी भी मैं समझती हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत तरीके से तरक्की की है और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है वो हमारे हाथों में है। उनको एक अच्छी तालीम, अच्छे निसाब, अच्छे तौर तरीके से हम आगे लाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक्सेल भी कर सकते हैं। अब मेरी इस इदारे के लिए दुआ है कि अल्लाह इसको कामयाब करे, क्योंकि फरीद साहब ने मुझे बुलाया और मैं आई। रीज़न ये था कि मैंने उनको आयशा बावानी को उठान देते हुए खुद देखा है। मैंने आयशा बावानी को जब भी विज़िट किया मैं बहुत इम्प्रेस हुई, जहाँ इल्म के हुसूल के साथ एथिक्स और अखलाकियात की बुलंदी मैंने खुद विटनेस की है। मुझे इस नॉर्दर्न हायर सेकेंडरी से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी इसी तरह उठान पाएगा और इस अहले महला के लिए ये बहुत खुशखबरी है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे फरीद साहब जैसे इंसान ने ये इतना अच्छा इदारा जो है वो ओपन किया है। आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
so much. These words are both appreciative as well as encouragement for our institution. Now I would like Ms. Rafia Malla to formally inaugurate the day by cutting a ribbon and planting the plant for us. Thank you very much. And then minus 1, plus 1, plus 5. Now say 5, where's 5? Plus 2, plus 2, minus 2. Yes, very good. Now show me 1. अम्मा ये ना ना हो भाई अबे सलमान से आवाज आ रही है इसके हाँ टच हो रहा है क्या है ये तो बिल्कुल आप चीटिंग भी नहीं कर सकते अरे भाई रुको ना सर्किट कंप्लीट दूर से पकड़े हैं ना सब इसलिए मैंने ना कल से पकड़ा है मम्मा यहाँ से पूछिए दोनों पानी में रख देना ये वो भी बना रहे ना इस करके आना इनकी तरह बच्चों की बना रहे आप थोड़ा सा हट जाए, आप स्पीच करिएगा। I want to show you and then बेचारी आई थी to get me careful. Have you observed that the object changed their position?
मेरे अल्लाह बुराई
शाबाश। जो बच्चे क्लैपिंग करेंगे उन बच्चों को इनाम मिलेगा। शाबाश। देखिए कितनी लालची है, मैंने ऐसे कह दिया इनाम मिलेगा, वो जोर से बजा रही थी। देखिए हाँ। चले जी, पहले जगलिंग शो, उसके बाद मैजिक शो। This is what
जी बच्चों, आपने घर पे जाके बेटा ट्राई नहीं करनी है, आपका मुंह जल जाएगा आपकी आंखें जल जाएंगी।
गंजे भाई नीचे होकर बैठो। शाबाश। चलें जी, आपसे मैंने वादा किया था आपको हम दिखाएंगे मैजिक शो। अच्छा, जिन बच्चों ने मैजिक शो देखने हैं, अच्छा हम सिखाएंगे भी, बताएंगे भी। घर पे जाएं, मैजिक वन पढ़े, अम्बो जम्बो चिकन चम्बो। क्या बोलना है? मैंने सुना ही नहीं, ये कान बंद है। ओह वेरी गुड। अब बोले अंतर मंतर। नहीं अंकल, ये किसने बोले अंकल? एक को हटाया और दूसरा आगे बैठ गया। हे, इसके कान बड़े कर दूंगा अभी, देखो। 1 2 3 सब बच्चे बोले आंगड़ू बांगड़ू। मजा नहीं आया। दूसरे बोले आंगड़ू बांगड़ू। अब देखें 1 2 3, और ये मेरे हाथ में ये रुमाल था। ठीक है जी। अब देखिए, आपने गौर से देखना मैजिक, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बातें करेंगे ना, आपको मैजिक का मजा ही नहीं आएगा। ये देखिए 1 2 3।
अच्छा हमारे पास दो छोटी छोटी बच्ची आ जाएं, कौन आएगी? दो आएंगी बस। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ बेटा। इन दोनों बच्चों के नाम की अच्छे से क्लैपिंग करें जी। मैं देख रहा हूँ कई क्लैपिंग कर रहे हैं और कई नहीं कर रहे हैं। बेटा आप वहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं। शाबाश। आपका नाम क्या बेटा? अनम। अनम। यहाँ बेटा यहाँ। आपका नाम? खदीजा। शाबाश। ये देखें, 1 2 3। एक इनको दे। 1, एक मुझे दे दें। 2। गुड़िया आप आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश शाबाश, आओ बेटा आओ। ये ऐसे यूँ क्यों आ रही हो? आओ। अच्छी बच्ची है। क्या नाम है आपका? इशाल। क्या कहा? इशाल। नहीं, नाम क्या है? इशाल। आपके मम्मा पापा कैसे बुलाते हैं? मम्मा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बच्ची है। ये पकड़ो बेटा। शाबाश। क्या नाम है आपका? इशाल। हाँ, अपना नाम याद रखो बेटा। अच्छा, शाबाश। ये बहुत अच्छी बच्ची है और इनको इनाम मिलेगा। आप बेटा सच बोलेंगे झूठ? हाँ? सच बोलेंगे झूठ? सच। ओह वेरी गुड। बेटा आप? सच। इसमें क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। ओह वेरी गुड। अब देखें क्या चीज़ है? कुछ नहीं। वेरी गुड। डाल दो इसके अंदर। आप भी डालो, आप भी डालो बेटा। देखें, आप गौर से देखें। 1 2 3 सब अलग हैं। एक एक निकालो बेटा, 1 by 1 निकालो बेटा। शाबाश। वो भी निकालो बेटा। और भी है, और भी निकालो। हाँ नहीं है? डाल दो, दोनों तीनों डाल दो। अच्छा, जैसे इन्होंने 1 by 1 निकाला है ना, तो आपने भी क्या करने मालूम है? 1 by 1 निकालना है, इनको देना है और इनको देना है। 1 2 3। शाबाश बेटा, जल्दी करो, निकालो बाहर। शाबाश। 1 by 1। अरे एक इनको दे ना बेटा। देखिए इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। खाली है। देखो, डाल दो। अच्छा ऐसा करें, आपका नाम बोल दिया? खदीजा। खदीजा। देखिए बेटा, वो केरी जुड़ा हुआ है। वो केरी देखो, देखो जुड़ा हुआ है। निकाल के दिखाओ। चले कोई बात नहीं, ये डाल दो इसके अंदर। अच्छा एक लड़का आ जाओ, कौन आएगा? आ जाओ मौलवी साहब। ये तीनों बच्चों के नाम की अच्छी सी क्लैपिंग कर दें। चलो बेटा बैठ जाओ, चलो बेटा बैठ जाओ, अभी जाओ। सामने देखो बेटा। आपका नाम क्या है? सुनैन उस्मान। आज से बोलो भैया, आपने मुझे बेरा समझाया क्या? हाँ, नाम क्या है? सुनैन उस्मान। अच्छा ये बताओ, आपको कौन अच्छा लगता है, मम्मा पापा? इमरान खान। मम्मा। जोर से बोलो भाई। मम्मा। मम्मा। तो अबू कहाँ गया? नहीं बेटा, आपको दोनों अच्छे लगने चाहिए, ठीक है ना? शाबाश। हम आपको पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक। क्या पिलाएंगे? हाँ, और ये है कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन। इसमें हम पानी डालेंगे। जब मैं बोलो 1 2 3, आपने दोनों आंखें ऐसे बंद करनी है, खोलना नहीं। अगर थोड़ी सी आप आंख खोले, गंजे हो जाओगे, ये नोज़ी बड़ी हो जाएगी, कान लंबे लंबे हो जाएंगे। ऐसे घूम के खड़े हो। ओह वेरी गुड। ये पकड़े आप जी। Show me what you want, show me a piece of your
जो इनके पेट में पानी गया है ना, वो दोबारा इनके पेट से निकालते हैं। ये पानी हम फेंक देते हैं। ये मैं पकड़, गाना नहीं गाना, अच्छा लो, ये पानी फेंक दिया और ये देखें, ये साफ कर दिया। जो इनके पेट में पानी गया है ना, वो देखें आप, वाह शो। आप इनकी नोजी से निकालेंगे, देखो पानी है, कह रहा नहीं है। अब देखें, टीट टीट, और अब ये देखें, आप यहाँ रखें, ये मुझे दें, 1 2 3। कितना पानी पिया तुमने? थैंक यू बेटा, बैठ जाओ, शाबाश, क्लैपिंग करे बेटा, शाबाश। सबसे पहले अच्छी सी क्लैपिंग हमारे इन भाइयों के नाम की करें। देखें, ये म्यूजिक चल रहा है, नेक है, हम काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट जो हो ना, गाने वाला हो, अगर आप उसको बोलो ना गाना गाएं, वो जब तक ये ना हो तो अच्छी सी क्लैपिंग करें मेरे भाइयों के नाम की। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, इसी के साथ मैजिक शो, जगलन शो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान, आपने खाना नहीं खाया है? हाँ, इधर आओ, जल्दी आओ, यहाँ से आओ। अच्छा, ये ना समझना मैजिक शो खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो देखो सामने है वो पॉपेट शो, वो जो पुतली है ना नाचेंगी यूं। एक गुड़िया बैठ जाओ, मौलाना साहब बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, इतनी मेरी बेटी भी है ईमान। उसकी बात मुझे अच्छी लगी तब मैंने इनको बुलाया, नहीं तो मैंने पाकिस्तान कह दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। आस्ते बोलो, क्या नाम है आपका? फातिमा। आपको अम्मी अच्छी लगती है, अब्बा? अब्बा। पप्पा अच्छा लगता है क्या? अम्मा क्या अब्बू? अब्बू। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? केजी। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। आपको इनाम मिलेगा, ठीक है? बोलो बोलो, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। कितनी लालची है। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? फातिमा। ओह वेरी गुड। क्लैपिंग करें इनके नाम की जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, मैंने समझ यहाँ पापड़ पड़े हुए हैं ना।
तो अभी थोड़ी देर के बाद देखिए पुतलियाँ नाचेंगी, डांस करेंगी। तो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे। वो हमारे रुआब भाई, अभी सेटिंग बन रही है। चल अच्छा चलो बच्चों के साथ थोड़ी देर यहाँ आ जाओ। 4-5 बच्चे मेरे पास आ जाओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ। इनाम, अरे इनाम देखिए, इनाम के लिए कैसे भागे भागे आ रहे हैं। उसको हाथ ना लगाएं। शाबाश, ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ। बेटा वहाँ जाओ, गुड़िया वहाँ जाओ बेटा। शाबाश, चलो आ जाओ। पहलवान यहाँ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है भाईजान? आराम से बोलो, ये कान बड़ा कर देगा तेरा। अच्छा हाँ थोड़ा पीछे से खेलना जा। ये बहुत अच्छा बच्चा है। आपने पता क्या बोलना है? दिल दिल पाकिस्तान जंग जंग पाकिस्तान, ऐसे बोलना है। ठीक है, आता है? बोलो। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। क्या बोलेगा? पाकिस्तान। ओह वेरी गुड। अच्छा आप बेटा बोले, आप दिल दिल सब एक साथ दिल के बोले। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारनां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलो आपकी बारी है। जो इन्होंने बोला वो नहीं, दूसरा बोलो। तुम ही ना जज्बा जनून। हाँ जज्बा बोलो बेटा। वहाँ मौलवी साहब को दे दो। बैठो, बाहर पाक सरजमीन शरबत, किश्वरे हसीन शरबत, खूमुल सल्जनत पाइंदा तबिंदबर। पाक सरजमीन शरबत। ओ वहाँ उनको दे दो। सबसे पहले आपको नहीं आता? अरे बोलो बेटा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो स्टार्ट कर रहे हो, जल्दी करें। हेलो हेलो, चलो जी चलो कोई बात नहीं बेटा। आपको हम पापड़ क्या? पापड़। हाँ पापड़ शो बोलो। कच्चा पापड़, पक्का कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़। ओह वेरी गुड। चलो चलो, शाबाश शाबाश। दिलवाने के लिए लाया हूँ। पापा मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना? हाँ हाँ बेटा, हमारा प्यारा सा शरीफ सा बेटा। हाँ पापा, मुझे आप किताबें भी ला के देंगे ना? हाँ किताबें भी ला के देंगे। पापा मैं पेंसिल भी लूंगा। हाँ बेटा, पेंसिल भी ले लेंगे, कटर भी ले लेंगे। पापा थैंक यू। और बहुत अच्छा सा बैग और यूनिफॉर्म भी। आपको पता है अभी मास्टर साहब आएंगे और आपका टेस्ट लेंगे। पापा बेटा इसमें रोने की क्या बात है? पापा मास्टर साहब मारते हैं ना? नहीं बेटा, मास्टर साहब मारते नहीं है। पता, मैं बताता हूँ आपको एक तरीका। आप ऐसा कीजिएगा, जो मास्टर साहब को मैं कहूँ ना वो ही आप कह दीजिएगा। पापा जो आप कहेंगे वही मैं कह दूँ? हाँ हाँ। फिर मारेंगे तो नहीं ना? नहीं ना बेटा, जो मैं कहूँ बिल्कुल आपने वही कहना है मास्टर साहब को। चलो ठीक है पापा। अरे वो लो मास्टर साहब आ गए। पापा मैं चुप हो जाऊँ? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जरा साहब जरा यहाँ तशरीफ लाइएगा। जी जनाब कहिए।
भैया माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है अब्दुल कुद्दूस। ये बच्चा जो है ये आपका है? बस आज से आप अपना ही बच्चा समझिए। अच्छा बेटा जरा आप इधर आइए। अरे बेटा जाओ, नहीं न मारते हैं। पापा नहीं मारेंगे ना? बेटा नहीं, जाइए, जब वो जो कुछ पूछे जैसे मैंने समझाया था वैसे। भैया बेटा जरा यहाँ आइए। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कद्दूस। अब्दुल कद्दूस? समझे नहीं बेटा, मेरा ख्याल से है। अच्छा हाथ छोड़िए। ये आपके अब्बू है ना? आज से आप अपने समझिए। अरे भैया ये क्या कह रहा है बच्चा आपका? जी मासूम और शरीफ सा बच्चा है, बेचारा बोल गया है। भैया आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जरा बाहर जाइए। पापा मैं भी बाहर जाऊँ? अरे नहीं बेटा, हाँ ये मुझे कह रहे हैं, तुम्हें नहीं कह रहे। अरे हाँ बेटा आप यहाँ रहिएगा, हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आप तो पढ़ने आए हैं ना? हाँ पापा मैं पढ़ने आया हूँ ना। भाई मास्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बच्चे को कुछ समझा लूं। हाँ बिल्कुल समझाइए। बेटा जरा इधर आओ साइड पे। हाँ बोलिए पापा। देखो बेटा बात सुनो, मेरी एक नसीहत याद रखना, समझे कि नहीं? मैं तुमसे कह के मैं बाहर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो जो मास्टर साहब कहें बिल्कुल वो ही कहना है, और जो मास्टर साहब करें बिल्कुल वो ही करना है। ठीक है, जो मास्टर साहब कहेंगे ना मैं वो ही कहूँगा, जो मास्टर साहब करेंगे मैं वो ही करूँगा। शाबाश, मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा। ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ। अच्छा बेटा जरा आप इधर आइए। जी मास्टर साहब बोलिए। कितना प्यारा शरीफ बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो बेटा पढ़िए अलिफ। हाँ बेटा पढ़िए अलिफ। बेटा अलिफ पढ़िए। हाँ बेटा अलिफ पढ़िए। अरे सिर्फ अलिफ पढ़िए। सिर्फ अलिफ पढ़िए। बेटा अलिफ बोलिए अलिफ। बेटा सिर्फ अलिफ बोलिए अलिफ। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ अलिफ बोलो, सिर्फ अलिफ। अरे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अलिफ बोलो अलिफ। अरे अच्छा बोलो बे। अच्छा चलो बे। क्या बेबी कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? बच्चे से बेबी करके बातें कर रहे हैं। अरे भाई अच्छा ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, बोलो ए। क्या कर रहे हैं सर जी? आप ए बोल रहे, आप ए पढ़ा रहे, मुझे ए कर रहे थे छोटे बच्चे के साथ। अच्छा बोलो बी। अच्छा बोलो बी। अरे बेटा सिर्फ अकेला बी। अरे बेटा सिर्फ अकेला बी। अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? अरे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ है? मैं पागल ये कौन है? मैं नहीं छोड़ूंगा, अरे क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? पापा मास्टर साहब पागल हो गए। क्यों? कैसे पागल हो गए? मेरा इतना शरीफ बच्चा, मेरा इतना मासूम बच्चा। मैं जरा अभी मास्टर साहब से पूछता हूँ, तुम जरा बाहर बैठो। पापा मैं जाऊँ? मास्टर साहब पागल हो गए, एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं जरा देखता हूँ मास्टर साहब का। एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। अरे कहाँ है मास्टर साहब? छोड़ूंगा मैं उसको। किधर गया बच्चा? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अरे वो तुम्हारा बच्चा है? अरे हाँ जी, मेरा प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा गिरबान छोड़िए। अरे मेरा गिरबान, अरे बचाओ। अरे लोगों बचाओ, मास्टर साहब पागल हो गए। अरे मेरे सीधे साधे मासूम बच्चे को मारने को दौड़े। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अजीब स्कूल है भाई, अजीब स्कूल है। जहाँ देखो अजीब किस्म के मास्टर हैं, मास्टर पागल हैं। भाई मुझे अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल नहीं कराना, मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ गए? पापा मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। अरे बेटा छोड़ो, यहाँ से इस स्कूल से चलो, शाबाश। पापा मैं चलता हूँ। आओ। Jagalaka bikko cikko sili go jagradum ciki cakaco.
देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी। खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब सुन ले। फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी।